Once again to my all dear students in our nuclear physics lectures. Today we will see the gamma rays absorptions, another topic, that is the Compton effects. In that previous video we are discussing about the photoelectric effect, which is related with the photon particles. Similarly, this one is also related with the photon particles. Now first of all I want to just introduce about the Comptons. The great scientist A.H. Compton, the name of that scientist, it is nothing but the A.H. Compton. The A.H. Compton, they discovered such kinds of effect in the 1923. Due to that effect, it is very useful for the futural research, and number of kinds are dependent on that effects. That's why they got a Nobel Prize in 1927. They got a Nobel Prize in 1927 related with these experiments. So this experiments is another most important things to say you, that is nothing but the nature of particles. Nature of particles. We know that is the simple, our particles is nothing but the waves. Mostly we see, mostly in that are the most of the confusions was present on the earth related to that particles is was the waves or not. But this experiment shows the our particles nature is nothing but the electromagnetic wave. So let us see the what is say the Compton effect. Simple one thing we say, the Compton effect is nothing but to say you, whenever the highly frequency incident photons are incident on any kind of rest electrons or strike on that rest electrons, after that the wavelength of scattered wave is increases. That means frequency is decreases. It is our scattered photons. This is our scattered photon. This is our incident photon. And we know the energy of that photon is nothing but the h nu. It is also photons. That's why its energy is h nu dash. And another one, the electrons is here. That is called as the recoil electron. Recoil electron. And the angles which is made by this, that is theta, that is phi. In the different books the angle was interchanged. This is denoted by phi, this is denoted by theta. That's please don't be confused related with that angles denotations. So guys, it is all about the Compton effects. Once again I was to say in our language. देखो Compton effect क्या है? Compton effect ये हमें बताता है कि कोई भी इंसिडेंट फोटोन जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर वो किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्ट्राइक होता है या उसके साथ कोलाइड्स होता है, तो उसके बाद जो इंसिडेंट फोटोन थे वो स्कैटर्ड होंगे, ऑब्वियसली स्कैटर्ड होंगे. जो स्कैटर्ड फोटोन होंगे उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी. वेवलेंथ क्या होगी? उसकी ज़्यादा होगी. दैट मीन्स देयर फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऑब्वियसली. व्हाई? बिकॉज दीज आर दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो ये था हमारा जस्ट स्कैटर्ड इफेक्ट, सॉरी कॉम्पटन इफेक्ट. ये क्या था? हमारा जस्ट कॉम्पटन इफेक्ट था. तो फिर से इसको एक बार क्या करते हैं हम लोग समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में. व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आर स्कैटर्ड, व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, ये देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? हाई फ्रीक्वेंसी है. ये क्या है? इंसिडेंट रेडिएशंस, दैट मीन्स इंसिडेंट फोटॉन्स है.
व्हेन द हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज इंसिडेंट, और सिंपल इसको क्या कर लो, स्कैटर्ड पकड़ लो, व्हेन द हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से स्कैटर्ड हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्कैटर्ड हो रहे हैं, ऑफ द स्कैटरर, the frequency of a scattered wave is smaller than the frequency of incident radiations. इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी तुलना में कैसी होगी, कम होगी। जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, स्मॉलर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्पटन इफेक्ट, that is called as the Compton effect, and it is simple, that is the relay, that is relay scattered, जो relay scattered है कौन सा वाला, इलास्टिक स्कैटरिंग, relay इलास्टिक स्कैटरिंग एंड फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। देखो दो बता रहा हूं मैं, रिले इलास्टिक स्कैटरिंग एंड फोटो इलेक्ट्रिक एब्सॉर्प्शन, both are depend upon the reaction of atom, both are depend upon the reaction of atom. So in case of that, whenever the energy is approaches near about 0.5 MeV, what I say, when an energy approaches 0.5 MeV, the wavelength becomes shorter, and the greater tendency to interactions of individual electrons takes place. अगर एनर्जी 0.5 के तकरीबन आती है, उसको अप्रोच करती है, तो इन ये केस में क्या होगा, जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शंस होगा वो पॉसिबल होगा, और वो हाईली पॉसिबल होगा वहाँ पे। और दूसरा एक इसके रिलेटेड और एक थ्योरी हमें पता है, दैट इज थॉमसन फ्री इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, थॉमसन फ्री इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, ये जो है ये यहाँ पे क्या होगी, ब्रेक होगी, यहाँ पे क्या होगी, ब्रेक होगी, एंड द इंटरेक्शंस ऑफ दैट कोलिजन्स ऑफ फोटोन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इंटरेक्शंस होना है आफ्टर द कोलिजन्स, उसकी वजह से ये थॉमसन्स का जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये जो सब फेनोमेनन हो रहा है ना, उसी को कहा जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। अब ये जो वैल्यू है एनर्जी की, ये हमारे लिए कहां तक इंपॉर्टेंट है, इट इज नथिंग बट दी 1 MeV तक मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम अबाउट दी 1 MeV। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो हमें कहां से कहां तक है, इट इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 0.5 से लेके 110 तक, ये यहां तक पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, ये मोर देन सफिशिएंट होगा हमारे लिए, कि जब ये जो फोटोन है, ये जो फोटोन की जो एनर्जी है कितनी होती है बच्चों, फोटोन की एनर्जी हम लोगों ने देखी थी कितनी थी, h²। ये जो फोटोन की एनर्जी है, इतने एनर्जी के साथ जब ये कोई रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्ट्राइक होगा, दैट मीन्स क्या होगा, इंसिडेंट होगा, उसके साथ कोलाइड्स होगा, उसको जाके धक्का मारेगा, आफ्टर दैट एनर्जी क्या होगी उसकी, h⁻डैश होगी, एनर्जी क्या होगी उसकी, h⁻डैश होगी, और ये क्या करेगा, ये इस थीटा के साथ चेंज होगा। देखो सबसे एक आसान बात मैं आपको बताता हूं, ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है ना, ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है, इट डज नॉट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन दिस वन एंड दिस वन, इट इज डिपेंड अपॉन दिस वन। कॉम्पटन इफेक्ट किसके रिलेटेड मैं बता रहा हूं आपको, इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन, ये दोनों के ऊपर ये डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है सिर्फ इस थीटा के ऊपर। अब देखो सिंपल, इसका एनर्जी चेंज हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, दैट मीन्स ऑब्वियसली इसका वेवलेंथ भी क्या होगा, चेंज होगा।
किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम. व्हाई? बिकॉज दी सिंपली जो भी कुछ डायरेक्शन होगा इंसिडेंट फोटॉन्स का, एक तो वो पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आगे जाने के बाद ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन को ये क्या होगा आगे जाने के बाद, एक तो परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो क्या होगा उसको, वो पैरेलल होगा. तो जो भी कुछ वेवलेंथ होगी इसकी वेवलेंथ चेंज होगी, और वो वेवलेंथ हम लोग बताते हैं डेल लैम्बडा इज नथिंग बट द लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा. और इस इक्वेशन के अंदर ये जो डेल लैम्बडा है, इट इज वी नो वेरी वेल, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इक्वेशंस. दिस डेल लैम्बडा इज नथिंग बट द कॉम्पटन शिफ्ट इफेक्ट. ये क्या है? हमारा कॉम्पटन शिफ्ट इफेक्ट है. ये क्या है? हमारा कॉम्पटन शिफ्ट इफेक्ट है. और दिस इक्वेशन इज नथिंग बट लाइक दैट. इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज नथिंग बट द h डिवाइडेड बाय MEC इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा. ये इक्वेशंस को हम लोग लिख सकते हैं. और ये वाली जो वैल्यू है, इट इज कॉल्ड एज द कॉम्पटन वेवलेंथ. इट इज कॉल्ड एज द कॉम्पटन वेवलेंथ. और इसकी वैल्यू है तकरीबन नियर अबाउट दैट इज 2.42. इसके आगे भी 2 डिजिट है, इंटू 10⁻12 मीटर. ये क्या है? हमारी कॉम्पटन की वेवलेंथ है. बच्चों देखो, ये नेट और सेट या JRF के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो समझ में आ गया ये जो इक्वेशंस है, दिस इक्वेशंस वी हैव ऑलरेडी डन इट इन BSc levels, graduate level physics. That is a del lambda is nothing but the Compton shift effect. और ये जो लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, ये क्या है? ये वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की. और ये जो वेवलेंथ है बराबर, ये जो वेवलेंथ है वो है इंसिडेंट फोटॉन्स की. और ये इक्वेशन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं. और ये जो वाला इक्वेशन है, H/MEC, इसको कहते हैं हम लोग कॉम्पटन्स वेवलेंथ. और ये कैसी होती है? ये कांस्टेंट होती है, और इसकी वैल्यू है तकरीबन 2.4261 इंटू 10⁻12. अब ये हो गया. अब इसके बाद क्या है कि ये तक तो हमें मिल गया सर, ये तो वेवलेंथ के बारे में आप लोग अपने रिलेशंस बता दिया. इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एक सिंपल सा देखेंगे कि जो ये कॉम्पटन वेवलेंथ है, देखो मैंने क्या बताया था, कॉम्पटन शिफ्ट, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो. ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ ना इसके ऊपर डिपेंड है ना इसके ऊपर डिपेंड है. फिर से बोल रहा हूं मैं, जो कॉम्पटन वेवलेंथ है वो ना इंसिडेंट फोटोन के ऊपर डिपेंड है ना स्कैटर्ड फोटोन के ऊपर डिपेंड है. ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आपके एंगल्स के ऊपर. दैट इज नथिंग बट दी थीटा. और एक इक्वेशन आपको पता है, दैट इज नथिंग बट दी लैम्बडा इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय न्यू. अब इसके पहले का जो इक्वेशन था हमारा, उस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं क्या? C डिवाइडेड बाय न्यू डैश माइनस C डिवाइडेड बाय न्यू इज इक्वल टू H/MEC. ये सफिक्स है, MEC इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा. और अगर इसको हम एनर्जी के रिलेटेड अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो ये होगा H न्यू इज इक्वल टू H न्यू डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस, हाँ बराबर है, दैट इज दी 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू जाय. और ये जो जाय है, ये जाय की वैल्यू देख लो बच्चों, H/MEC स्क्वायर है. ये जो जाय हम लोगों ने लिया है, ये जाय क्या है? H/MEC स्क्वायर आता है. और इट इज नथिंग बट दी रिड्यूस्ड इंसिडेंट गैमा एनर्जी. ये क्या है? हमारी रिड्यूस्ड इंसिडेंट गैमा एनर्जी है. अब समझ लो कि जो आने वाली फोटोन एनर्जी है, या जो फोटोन है, ये जो इंसिडेंट फोटॉन्स है, इसकी एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स H न्यू इज वेरी वेरी लार्जर देन MEC स्क्वायर. इसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, बराबर है. तो क्या होगा? आपका जो स्कैटर्ड फोटोन है वो बैक आएगा. बैक स्कैटर्ड फोटोन अप्रोचेस. Back scattered photon is approaches, and it is nothing but the 1/2 MEC square. It is the kinetic energy, and value of that is nothing but the 0.2 MeV. 0.2
0.25 MeV बराबर है। बट ये कब होगी? जब आपका थीटा होगा 180 डिग्री। कितना होगा थीटा? 180 डिग्री। अगर मानो थीटा आपका 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। वो वैल्यू क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। इन केस में क्या होगा? आपकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखो 180 है, ये 90 डिग्री है, मानो फिर ये डबल है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? डबल होगी। वो होगी 0.51 EV, 0.51 MeV। ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन रिलेटेड विद द एनर्जी। अब ये हो गया। अब बढ़ते हैं इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स की ओर। कहां बढ़ते हैं अब? ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स की ओर। अब ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है, ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सम काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। ऑब्वियसली उसको काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या करेंगे अभी यहां पे शो करेंगे। देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय द T, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी इसकी? सिमिलरली h न्यू माइनस h न्यू डैश, h न्यू माइनस h न्यू डैश, और इसको हम लोग सिंपल लिखते हैं h न्यू माइनस, देखो इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू जाई इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू जाई। ये क्या हो गई? ये हमारी आ गई T की वैल्यू। ये क्या हो गई? हमारी T की वैल्यू हो गई। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। किसकी? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स की। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू कैसे होगी? ज्यादा होगी। और आप लोगों को पता है अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका जो स्कैटर्ड है वो क्या होगा? बैकवर्ड आ जाएगा। स्कैटर्ड क्या होगा? वो डायरेक्टली बैकवर्ड आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्कैटर्ड बैकवर्ड आ रहा है। अगर मानो इसकी एनर्जी जीरो है, मानो एनर्जी क्या है? जीरो है। एनर्जी क्या है इसकी? जीरो है। तो आपका एंगल भी क्या हो गया बच्चों? जीरो हो गया। एंगल भी क्या हो गया? जीरो हो गया। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? दोनों की सेम हो गई। चेंज हो गई क्या? नहीं हो गई। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? T max इज इक्वल टू अब h न्यू लिखो या h न्यू डैश लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यू क्या है हमारे पास? सेम है। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 साई, 1 प्लस 1/2 साई, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या लिखी हम लोगों ने? 0 लिखी। तो ये था कॉम्पटन इफेक्ट सिंपली एक्सप्लेनेशंस। अब सिंपल एक पॉइंट हमारा रह गया कि ये दोनों का रिलेशन क्या है? रिकॉइल का और स्कैटर्ड के बीच में जो एंगल बने थे कौन कौन से? थीटा एंड फाई। इसका रिलेशन क्या है? तो इसका रिलेशन सिंपल है। इट इज नथिंग बट दी कॉट फाई इज इक्वल टू 1 प्लस जाई, 1 प्लस जाई, that is tan 1/2 थीटा। ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द कॉम्पटन इफेक्ट। अब कॉम्पटन इफेक्ट्स को लेके और आगे कुछ इनोवेशंस हुए। अब ये जो हम लोगों ने देखा था ये था सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का, बट जब आप लोग क्रॉस सेक्शन देखोगे अनपोलराइज और पोलराइज इंसिडेंट्स वेव को लेके, उसका जब आप टोटल इंसिडेंट का एनर्जी निकालोगे तब उसके ऊपर एक ये जो इक्वेशंस मैं लिख रहा हूं क्लेन निशिना इक्वेशंस, इन्होंने वर्क किया है। बट आई थिंक आपको गैमा एब्सॉर्प्शन के लिए यहां तक मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है यहां तक। अगर आप लोगों को लगता है कि ये इक्वेशंस चाहिए तो प्लीज मुझे बता दो। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंड अनादर एक वीडियो बनाएंगे। अगर जैसे आपको अगर ये इक्वेशंस के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरा सेकंड चैनल है जो कि नेट और जेआरएफ के रिलेटेड है, वर्क हो रहा है उसके ऊपर अभी, उसके ऊपर ये इक्वेशंस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू हैव completed these 2 articles and second one अभी इसके 2 बाकी है, एक पेयर प्रोडक्शंस एंड इनिलेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शंस, वो सिर्फ 10 और 15 मिनट का लेक्चर है, वो ऑब्वियसली वो लेक्चर हो जाएगा इन द नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।